issue, I do admit, but time I is over. request urge the government to take necessary steps Question hour. to provide reservation. Question hour. Sri, no, time is over. It's not going on record, Ravindra Kumarji. Sri Derek O'Brien, not present. Minister. Supplementary. Ji. Oh, Chairman, sir, giving the opportunity to put a supplementary question. This, I am very happy and also congratulate the Modi government and also Honorable Minister taking such kind of effort to say the Beti Bachao, that kind of program. But I have seen that reply. You have given the detailed things of what are the measures taken by the Modi ji government to save the female child. That is the very important thing. But I want to know from the Honorable Minister, see, you know very well in Tamil Nadu, when this kind of situation took place, 91, 92 at the time, Honorable Amma took a cradle baby system to save the female child. That is the scheme that she brought and introduced, saved so many female girls and give good education. Can the minister come forward this kind of scheme to implement throughout the India to save the female child? That is I want to know. Thank you. This is your suggestion. Please. The honourable member's suggestion and the concern that he has expressed. So under this scheme, the democratization of policy measure is such that every district can use any measure that they deem fit, including a state government can take any decision they may deem fit to ensure that the girl child is safe. This particular suggestion of the honourable member shall be communicated to his state government. Thank you. Srimati Chaya Verma. डेरेक जी ने ये प्रश्न उठाया है कि कितने प्रतिशत धन राशि महिला बाल विकास के प्रचार प्रसार में खर्च हुआ। मंत्री जी का जवाब मैंने पढ़ा, इसमें जवाब में आया है कि 20-21 में 58% राशि महिला बाल विकास का जितनी राशि एलोकेट किया गया उसमें 58% राशि विज्ञापन एवं प्रचार प्रसार में खर्च किया गया। डेरेक जी है नहीं। मेरा सवाल आपके माध्यम से ये है कि मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहती हूँ, क्या आने वाले समय में थर्ड जेंडर को महिला बाल विकास के आंगनबाड़ियों में प्राथमिकता के आधार पर नौकरी में रखा जाएगा क्या? ये मैं जानना चाहती हूँ। माननीय सदस्य ने इस बात का उल्लेख किया कि इस स्कीम के अंतर्गत मात्र प्रचार प्रसार में भारत सरकार पैसा खर्च करती है। मैं उनको इस सदन में अवगत कराना चाहती हूँ कि भारत सरकार 100% 400 से ज़्यादा ज़िलों में प्रत्येक ज़िला को 50 लाख रुपए प्रदान करती है ताकि ज़िला अधिकारी और प्रदेश की सरकार जैसा कार्यक्रम उचित समझे वैसा उसको अपने प्रदेश में अपने ज़िले में वो इम्प्लीमेंट करें। जहाँ तक कि आंगनवाड़ी सिस्टम्स में किसको नौकरी देना, ICDS प्रोग्राम जो अब मिशन पोषण के नाम से जाना जाता है, उसमें भी इम्प्लीमेंटेशन का अधिकार प्रदेश सरकार का है। धन्यवाद। श्री मनोज कुमार झा जी। शुक्रिया। माननीय मंत्री जी, अभी हाल में परसों ही एक रिपोर्ट आई है कि उत्तर प्रदेश में कुपोषण के लक्षण बहुत चिंताजनक हैं। बावजूद उसके पोषण अभियान के 66% फंड का यूटिलाइजेशन नहीं हुआ है। क्या ये सच है? माननीय सदस्य जो प्रश्न कर रहे हैं वो इस प्रश्न से संबद्ध नहीं है, लेकिन इतना निश्चित रूप से कहना चाहूँगी कि जनवरी 13 पिछले साल हमने पोषण अभियान की इम्प्लीमेंटेशन के अंतर्गत नए गाइडलाइंस हर प्रदेश की सरकार को प्रस्तुत किए थे। तत्पश्चात हर माह प्रदेश की सरकारों के साथ समन्वय से हम हर घर तक, हर बेनिफिशियरी के घर तक उनके जो लाभ हैं वो पहुँचे, विच इंक्लूड्स राशन। हमें प्रदेश की सरकार ने अवगत कराया है और रिपोर्ट भी उपस्थित करवाई गई है, जिसके अंतर्गत प्रदेश की सरकारें विच इंक्लूड्स उत्तर प्रदेश बेनिफिशरीज के डोर स्टेप तक बेनिफिट देकर आई हैं। धन्यवाद। क्वेश्चन नंबर 2 ऑनरेबल श्री वाइको जी। श्री वाइको नॉट प्रेजेंट। क्वेश्चन नंबर 2। Wait, the answer is late, please. माननीय अब्दुल वहाब जी, सप्लीमेंट्री।
by Muslims, Dalits and tribals, entry level jobs in private sector. Let's study by those who are that there are eligible number of minorities, Dalits and tribals in our celebrated media rooms also. Question is whether the government will give any direction to the private sector to publish their employees' demography to understand the situation of discrimination, or constitute a committee to study about such discrimination in private sector. Thank you, Abdul Wahab. Honorable Chairman, it is subject to the legislation. However, the government is very sensitive to the issue of the affirmative action, including reservation in the private sector, and has initiated wide-ranging consultations with the view to explore the best possible way to ensure that private sector fulfills the aspirations of the youth. At present, the Constitution does not provide any mandate for the reservation of the jobs for SC, ST or the general, even the general category in the private sector, sir. The reservation of the private sector can be provided by only bringing the legislation in the Constitution, which would therefore require wider discussion, consultation with the stakeholders before we will be taken up the issue, sir. Thank you. Manya Shri P. Bhattacharya ji from Lok Sabha. Please put your question. Voice, mic is not working. Please, Manya P. Bhattacharya ji from Lok Sabha, your voice. Hello, mic is not working. Please tell. I am speaking. Yes, please. अब सुनाई दे रही है आपकी आवाज. अभी Please. सुनाई जा रहा है तो? जी हाँ. In so many cases, we have seen the private sectors are avoiding to follow the reservation for the youths. Why the government of India is not going to put up a legislation so that all the private sector industry has to follow the reservation policy followed by the government of India and the state government? Thank you. माननीय मंत्री जी. Sir, our honorable member is asking so many questions about the reservation in the private sector. But with regarding the affirmative action for the SC and ST and the other general caste private sectors, coordination committee is there. It was set up by the Prime Minister's office in 2006 under the chairmanship of the Principal Secretary of the Prime Minister, sir. It had held 9 meetings from the 2006 till 2019, sir, and it is received suggestions from the various stakeholders, sir. Even for the reservation of the ST and ST, there was a coordination committee to resolve the unemployment problems. The committee held several meetings, sir, and advised the taken the appropriate action on the issue of the consulting the concerned departments and HRs of the private companies. They provide the employment for the candidates who belong to SC, sir. Even our government, as by Honorable Prime Minister Narendra Modi, is advised to promote and set up more skill training programs in all the sectors of the entire private sector, sir. Thank you. Dr. Shivdasan. Dr. Shivdasan. Please. Decreasing number of jobs of SC/ST community in private sector the last 5 years? The question will not arise, sir, because we have no such statistics, sir. Question number 3, Dr. C.M. Ramesh. माननीय मंत्री जी. First supplementary. Autonomy accompanied by physical responsibility to the Panchayat Raj department, Panchayat Raj system in the country. सभापति महोदय, पंचायत राज मंत्रालय के माध्यम से राज्य की संचित निधि से पंचायतों को सहायता अनुदान के लिए माइक पंचायत राज मंत्रालय के माध्यम से राज्य की संचित निधि से
पंचायतों को सहायता अनुदान के लिए राज्य विधानमंडलों से प्राधिकरण प्राप्त करके पंचायतों को सुदृढ़ वित्त साथ ही पंचायतों के निर्दिष्ट करो शुल्कों पदकर का प्रावधान है। 5 वर्षों में पंचायतों वित्तीय स्थिति की समीक्षा केंद्रीय वित्त आयोग और राज्य वित्त आयोग के माध्यम से भी की जाती है। थैंक यू। माननीय सदस्यगण, जहां आपकी एलोकेटेड सीट से कृपया वहां बैठें और जो सदस्य गैलरी और लोकसभा में बैठे हो कृपया बैठकर ही सवाल पूछें। माइक से आवाज आएगी और सुनाई देगा। कनक मेदला रविंद्र कुमार जी, सेकंड सप्लीमेंट्री प्लीज। सर गैलरी सर। सेकंड सप्लीमेंट्री। Sir, to improve effectiveness of governance mechanism, in some states, it is gathered that the certain minimum qualifications for the representatives have been prescribed. Whether the government may consider this aspect and also consider providing training to local representatives to ensure more effectiveness of Panchayat Raj system in the country. Thank you. सर, पंचायत सदस्यों को न्यूनतम अर्हता का जो सब्जेक्ट है वो राज्य का विषय है। केंद्र सरकार निहरता तय नहीं कर सकती क्योंकि चुनाव लेना है राज्य का सब्जेक्ट है। लेकिन चुन के आने के बाद पंचायत राज मंत्रालय की एक योजना है RGSA, उसमें हम लोग 2 तरह के प्रशिक्षण जो चुन के आते हैं सदस्य उनको देते हैं। इसमें बेसिक ट्रेनिंग, जो सदस्य चुन के आते हैं उनके अधिकार क्या है, तो चुन के आने के बाद किस तरह से गांव के विकास में योगदान दे, उसका प्रशिक्षण उनको दिया जाता है। उसके 2 साल के बाद में रेफरेंस ट्रेनिंग दी जाती है। जो अभी नया टेक्नोलॉजी आया है तो टेक्नोलॉजी के माध्यम से अपनी ग्राम पंचायत ग्राम स्वराज के माध्यम से किस तरह से जुड़े, अपने गांव का विकास करने के लिए सारे जो पोर्टल है वो किस तरह से आत्मसात करे, इसका ट्रेनिंग 2 साल के अंदर दिया जाता है। और ये केंद्र और राज्य सरकार की पुरस्कृत योजना है और ट्रेनिंग देने का काम राज्य सरकार करती है। धन्यवाद। श्री कनक मेदला रविंद्र कुमार जी। सर गैलरी नंबर 4 सर। गैलरी नंबर 4 सर प्लीज। हाँ, फ्रॉम गैलरी। यस sir. Sir, in view of the constitutional amendments, the Panchayat Raj institutions are strengthened, but in respect of Andhra Pradesh, there is a complaint that the funds released for the panchayatis has been diverted and withdrawn from all the panchayati accounts. If that is so, the panchayat institutions will be weakened. So, is there any steps have taken to rectify it and to advise the government of Andhra Pradesh? Thank you. Please be specific in your question. Please. Government of Andhra Pradesh not to withdraw the amounts from their accounts with respect to Gram Panchayats. Please. अगर ऐसा होता है तो निश्चित तौर पर आंध्र प्रदेश सरकार से जानकारी लेके उसके बारे में पंचायत राज मंत्रालय के माध्यम से हम लोग उचित निर्देश जारी करेंगे। माननीय राकेश सिन्हा जी। महोदय, मैं जानता हूं कि पंचायत राज्य का विषय है और अलग अलग राज्यों में पंचायतों के कुछ अलग अलग कानून, नियम और कन्वेंशंस हैं। क्या भारत सरकार या मंत्रालय इस बात की व्यवस्था करेगी कि अलग अलग राज्यों के पंचायत के चुने हुए सदस्यों का अनुभव दूसरे राज्यों में हो, जिससे कि पंचायत की एफिशिएंसी और पंचायत का जो कन्वेंशन है उसका विकास हो सके? अगर एक छत्तीसगढ़ के पंचायत में कोई कन्वेंशन है और पंचायत के कार्य करने का तरीका है, वही तरीका यदि असम में हो, धन्यवाद राकेश। इसके लिए मैं सरकार से अनुरोध करता हूँ कि इस पर क्या करना चाहिए। धन्यवाद सर। ये प्रावधान है, जो पंचायत अच्छी काम करती है वहाँ पे कुछ लोग जाते हैं। जैसे मैं महाराष्ट्र का एग्जाम्पल दूंगा, हिरवे बाजार पंचायत का। वहाँ पे बहुत सारे राज्यों से वहाँ पे जो अच्छा काम हुआ है वो देखने के लिए दूसरे पंचायतों के सदस्य जाते हैं। डॉक्टर अमर पटनायक जी। Sir, we know that panchayats have not been transferred finance, functionaries and functions. But now the biggest question is for their inclusion in Digital India campaign that is being talked about everywhere. What is the plan of the ministry? सर, ई ग्राम स्वराज के माध्यम से
पंचायत राज मंत्रालय में लगभग 2 लाख पंचायतें अब तक जुड़ी हुई है। बाकी बचे हुए पंचायतों को ई ग्राम स्वराज के माध्यम से हम लोग जोड़ने के बारे में हमारा प्रयास शुरू है। ये सारा जो पोर्टल है वो तकनीक के माध्यम से पंचायतों को जोड़ के कम से कम वहाँ पे भ्रष्टाचार हो, इसके लिए ये हम लोगों ने कदम उठाया है और इसका अच्छा रिस्पांस हमको मिला। धन्यवाद। क्वेश्चन नंबर 4 चौधरी सुखराम सिंह यादव जी। माननीय मंत्री जी, फर्स्ट सप्लीमेंट्री माननीय चौधरी साहब। महोदय, मैं माननीय मंत्री जाना चाहता था, उसका जवाब माननीय मंत्री ने सही नहीं दिया, लेकिन मैं इतना पूछना चाहूँगा माननीय मंत्री, मैं जानना चाहूँगा माननीय मंत्री जी ने कि जो आपने जवाब दिया है उसमें कहा है कि क्राइम इन इंडिया में ये आप प्रस्तुत करेंगे। हम लोग क्राइम इन इंडिया कहाँ मिलेगा कहाँ नहीं मिलेगा हमें नहीं मालूम। जवाब मांगा गया है हाउस में, जवाब हाउस में आना चाहिए था। लेकिन आपसे संरक्षण चाहता हूँ कि माननीय मंत्री से कहें कम से कम ऐसा जवाब दें कि हम लोग उसको जान भी लें। दूसरी बात मैं पूछना चाहूँगा माननीय मंत्री से आपके माध्यम से कि नकली नोटों के बारे में जिस प्रकार से ये नोटबंदी हुई और पूरे देश में हाहाकार मच गया, उसके बाद आज तक स्थिति क्या है कि नकली नोटों का प्रचलन बंद हुआ, उससे अधिक नकली नोट आज बाजार में आ गए हैं। धन्यवाद। सभापति महोदय, जहाँ तक उन्होंने मूल प्रश्न के संबंध में कहा है कि उत्तर सटीक नहीं है, मैं स्पष्ट रूप से उनको कहना चाहूँगा कि जो उन्होंने पूछा है वह उत्तर सभापटल बहुत ही सटीक रूप में रखा गया है खंड वाइज। दूसरा है कि उन्होंने कहा कि जब विमुद्रीकरण हुआ है उसके बाद जाली नोटों के प्रचलन में भी क्या स्थिति आई है, बढ़ी है या घटी है। तो जाली नोटों का जो एक तरह से प्रचलन है, जिसका जो कुप्रभाव देश पर पड़ता है वह केवल आर्थिक स्थिरता के लिए ही खतरा नहीं है, देश में आतंकवाद को भी बढ़ावा देने का प्रयास करता है। माननीय मोदी जी की सरकार संकल्पित है कि हम देश की अखंडता के लिए और देश की आर्थिक व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए हम किसी भी प्रकार के साजिश को हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। और जहाँ तक नोटबंदी की बात आई है उसमें बहुत सारे अच्छे परिणाम आए हैं। नोटबंदी के कारण तो बहुत है, इस मूल प्रश्न से जुड़ा हुआ नहीं है, फिर भी माननीय सदस्य को हम कहना चाहेंगे कि इसके कारण जो काला धन था, काला धन को बाहर निकालने में बड़ी कामयाबी मिली है और आज इसको देश और दुनिया भी इसको देख रही है। नहीं, बिल्कुल आज जिस प्रकार के काला धन और दूसरा जो आतंकवाद, उग्रवाद और नक्सल इलाकों में जिस काले धन का उपयोग होता था वह एक बड़ी मात्रा थी और इस विमुद्रीकरण के कारण उस पर कमी भी आई है, विराम भी आया है। जहाँ तक जाली नोट के प्रचलन की बात है कि ज़्यादा आया है, ऐसा नहीं, इसकी कोई स्थिर प्रवृत्ति नहीं है, कभी बढ़ता है कभी घटता है। लेकिन जैसे 17 और 18 के उदाहरण इसमें हमने उत्तर में दिया है, तो लेकिन इस पर सरकार की संकल्पित है। और जो जाली नोटों का अगर यह क्वेश्चन का भाव यह है कि जाली नोट ज़्यादा अभी बरामद किए जाते हैं, इसका मतलब है कि सरकार अपने संकल्प के अनुसार उस साजिशों को नाकाम कर रही है जो जाली नोट के प्रचलन को भारतीय अर्थव्यवस्था में लाना चाहते हैं। थैंक यू, धन्यवाद। सेकंड सप्लीमेंट्री चौधरी साहब। थे कि आखिर कितना प्रतिशत अब जाली नोट चल रहा है, नहीं बताया माननीय मंत्री, नहीं बताया। सेकंड सप्लीमेंट्री। मैं माननीय मंत्री पूछना चाहूँगा कि इस नोटबंदी को के बाद भी यदि जाली नोट नहीं रुक रहा है तो सरकार को, जो कल माननीय बजट पेश किया गया, माननीय मंत्री ने पेश किया, उसमें इन्होंने कहा डिजिटल नोट में अब जारी होंगे। क्या ये नोट, फर्जी नोट रोकने के लिए डिजिटल नोटिंग से लाभ मिलेगा या इसकी प्रक्रिया कब तक पूरी हो जाएगी? जरूर लाभ मिलेगा। जहाँ तक कि इन्होंने कहा कि नोटबंदी और जाली नोटों का जो प्रचलन है उसमें कमी आई या नहीं आई है,
मैं इनको स्पष्ट रूप से मैं पहले भी कहा हूँ, अगर और विस्तृत उत्तर चाहते हैं तो मैं इनको बताना चाहूँगा कि NIA अब तक FICNA के 12 केस दर्ज किए हैं और उस 12 केस में जो पाकिस्तान के 21 केस थे और अब तक उसमें 291 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है, 108 दोषियों के विरुद्ध कार्रवाई की गई है। जब सरकार इस प्रकार की जांच करती है, FIR करती है, ठोस कार्रवाई करती है और गिरफ्तारियां होती है, तो निश्चित रूप से जाली नोट के प्रचलन व्यवस्था में लाने के लिए जो प्रयास होता है उसमें निश्चित रूप से कमी आई है। कभी कमी आई है तो हमारे ठोस निर्णय और कार्रवाई का परिणाम है, कभी बढ़ती है तो हमारी जो प्रक्रिया है उसको रोकथाम के लिए तो हम उसकी बरामदी भी ज़्यादा करते हैं। धन्यवाद। श्री अनिल देसाई जी फ्रॉम लोकसभा। और अध्यक्ष महोदय, जहाँ तक प्रतिशत की बात करते हैं तो गृह मंत्रालय जब इस प्रकार की घटनाएं होती है तो NIA जो इसकी जांच एजेंसी है उसके माध्यम से हम इस पे कार्रवाई करते हैं। लेकिन जो प्रश्न है, बहुत प्रश्न इनका वित्त विभाग से भी जुड़ा हुआ है। धन्यवाद। श्री माननीय अनिल देसाई जी बैठकर बोलें, आवाज आएगी, बैठकर बोलें प्लीज। थैंक यू चेयरमैन सर। डेप्यूटी चेयरमैन सर, सर in the chart which has been given by the minister, if you go by the chart, the progressively recovery of the notes is being shown. My question to the minister through you is, when after demonetization, when the new bill was introduced, government through RBI had made it categorically emphasize that security features which are embedded in the new bills, they will never be able to compromise by the counterfeiters. To ward off whatever attempts were being done earlier before the demonetization and why the demonetization has taken place, to keep off terrorists and that easy accessibility to duplication of the notes and all. Now that, I mean, this is progressively going higher and higher, barring... Please put your question briefly. My question to the minister is, what measures are being taken? Because if minister, what he's saying in the reply given to the earlier colleague, that attempts are being made to see that this is covered, what exact measures, because this is playing with the internal security, question, please, internal security Mr. of the Desai. nation. This is a very important question, sir. Let me I ask. know, but... what measures are being taken? I mean, it is not that, I mean, what answers are being given by the minister. Please be is brief. not what measures are being taken to put full stop to this, Thank you. to curb Thank this you. menace. Thank you. माननीय मंत्री। सभापति महोदय, इसके लिए सरकार व्यवस्था की है और कानूनी उपाय भी किए हैं, जैसे कि जाली करेंसी नोटों को बनाना, उनका उपयोग करना, रखना भारतीय दंड संहिता की धारा 489 क से अंगत के तहत दंडनीय अपराध है, जिसके तहत हम काम करते हैं। इसको NIA एक्ट के तहत इसे अधिसूचित अपराध में बनाया गया है ताकि इस पर रोकथाम की जा सके। उच्च गुणवत्ता वाले FICN संबंधी अपराध को वर्ष 2013 में UAPA के तहत आतंक की श्रेणी में लाया गया है ताकि उसका हम विस्तृत जांच भी कर सकें, रोक भी लगे। संस्थागत उपाय भी इसके रोकथाम के लिए किए गए हैं और गृह मंत्रालय ने इसके लिए CFT बनाई है जो आतंकवाद के वित्त पोषण का मुकाबला करने के लिए है। NIA को FICN के मामलों को नोडल एजेंसी बनाया गया है। केंद्र सरकार ने FICN के मामलों को प्रभावी समन्वय और तत्काल सूचना साझा करने के उद्देश्य से FICN समन्वय केंद्र भी बनाई है। 2014 में भारतीय मुद्रा के सिक्योरिटी फीचर की गुणवत्ता में भी सुधार किए गए हैं ताकि जाली नोट की छपाई नहीं हो सके। इस प्रकार से संस्थागत भी उपाय किए गए हैं, कानूनी उपाय भी किए गए हैं और समय समय पर इसका समीक्षा भी होती है और उस पर कार्रवाई भी करते हैं। धन्यवाद। माननीय महेश पोद्दार जी। Thank you, Deputy Chairman, sir. Sir, my question is, whether the government maintains data on such counterfeit notes that have been recovered around the border areas and the country-wise particularly. If so, what measures are being taken to improve the recovery from such countries from where the migration is more? धन्यवाद। माननीय मंत्री जी। उसकी निगरानी एक तो सीमा पर चौकसी बरत के जो हमारी वहाँ फोर्सेज लगी है CAPF की,
उसके माध्यम से भी करते हैं। दूसरा कि कई प्रकार के प्रशिक्षण भी हम लोग बैंकों को देते हैं, और जहाँ तक इन्होंने कितने जाली नोट पकड़े गए इसका आंकड़ा जो बता रहे हैं, यह ब्यूरो के रिकॉर्ड में अंकित है, और इसमें भी है। अगर वर्षवार जो हमने उत्तर में टेबल पे दिया है, जो 5 वर्षों का है, उसके लिए उस टेबल में देखा जा सकता है। और ख़ास करके यह जो जाली नोट है, यह पाकिस्तान के साजिश का एक प्रयास होता है, और यह पाकिस्तान के बॉर्डर से इंडिया में प्रवेश करने की प्रयास भी होता है। बांग्लादेश से भी आते हैं, और लेकिन बॉर्डर पे भी, और बॉर्डर के अंदर किसी प्रकार से वह प्रवेश भी करता है, तो राज्य की भी एजेंसियां काम करती है और केंद्र की भी एजेंसियां काम करती है, और उसमें हमको कामयाबी भी मिलती है। धन्यवाद। माननीय शक्ति सिंह गोहिल जी। सभापति महोदय जी, बड़ी चिंता का विषय, मैं सिर्फ एक फिगर्स जान के माननीय मंत्री जी से आपके जरिए जवाब जानना चाहता हूं। कहा गया था कि डीमोनेटाइजेशन इसलिए हो रहा है कि भाइयों बहनों, ये जो जाली नोट है बिल्कुल बंद हो जाएंगे। अब 2000 के नोट्स 4,67,346 पकड़े गए जो नए नोट है। 500 के नए नोट्स 2,97,372 पकड़े गए। मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि आप कहते हो कि हम प्रयास कर रहे हैं, ऐसा कैसा प्रयास चल रहा है कि हर साल जाली नोट कम होने की बजाय आपका टेबल दिखा रहा है कि 2019 में 2000 के नोट्स 90,566 पकड़े गए थे, वो कम नहीं हुए, बढ़ के 2020 में 2,44,834 हो गए। माने बढ़ता ही बढ़ता जा रहा है। आप कहते हो तो क्या हम इतने कमजोर हैं कि पाकिस्तान की साजिश करते रहे और हम सीना तान के बैठे रहें? क्या कोई आपके बड़े लोग जाली नोट नेपाल से या बाहर से आए उसके लिए जिम्मेवार है कि नहीं, उसकी जांच करवाना चाहते हो या नहीं? प्लीज क्वेश्चन। धन्यवाद। सभापति महोदय, मैं पहले ही कहा हूं कि इसकी प्रवृत्ति अस्थायी नहीं है। अगर जिस वर्ष के आंकड़ों की बात माननीय सदस्य कर रहे हैं, तो मैं चाहूँगा कि 7, 17 और 18 के भी आंकड़े देखें कि 17 के अलावा 18 में कम हुए हैं। लेकिन एक चीज़ मैं फिर स्पष्ट कहना चाहता हूँ कि ज़्यादा जाली नोटों की जब्ती यह भी एक शो करता है कि हम कार्रवाई तत्परता से कर रहे हैं। तो हमारे कार्रवाई का भी परिणाम है कि जिस प्रकार के प्रयास किए जाते हैं, उस प्रयास को विफल करने को भी यह प्रतीत कराता है कि जाली नोट ज़्यादा से ज़्यादा पकड़े जा रहे हैं। और जाली नोट के वर्ष वाइज आंकड़ा भी दिए गए, तो कभी कमता है कभी बढ़ता है। 2019 की 20 की बात उन्होंने किया है, तो टेबल में 2017 और 18 के टेबल में भी आंकड़े को देखेंगे तो पता चलेगा कि इसका अस्थायी प्रवृत्ति नहीं है। धन्यवाद। क्वेश्चन नंबर 5 श्री टी.जी. वेंकटेश जी। माननीय मंत्री जी। माननीय मंत्री। उत्तर सभा पटल पे रख दिया गया। My question first supplementary. Sir, my first supplementary question through you to the Minister, Home Minister. Sir, after bifurcation of Andhra Pradesh, Telangana, newly formed states, sir, they used the electricity power supplied by Andhra government, Andhra Pradesh, and they have not paid the bill, sir. They have to pay more than 3,000 crores. If you calculate the interest around 6,000 crores, they are not showing any interest for the payment to the Andhra government. Whether government of India, whether they can deduct their payments and pay to the Andhra Pradesh, any working out that way they are Thank doing, you. sir. Thank you, Venkatesh. माननीय मंत्री जी। सभापति महोदय, केंद्र सरकार चिंतित भी रहती है और प्रयास भी करती है कि पूरे देश के समग्र विकास के साथ साथ तेलंगाना और क्या नहीं आप जवाब दें। नहीं, हमको बहुत मानते हैं, हम उनके छोटे भाई हैं, तो अभी भी हमको निमंत्रण दिए कि एक बार आकर हमारे यहाँ भोजन आपस का रिश्ता हाउस के बाहर। प्लीज माननीय मंत्री जी जवाब। तो सरकार चिंतित है कि पूरे देश के समग्र विकास के साथ साथ आंध्र प्रदेश और तेलंगाना का भी विकास हो। MHA इसमें एक नोडल एजेंसी है
और नोडल एजेंसी के रूप में यह कोऑर्डिनेशन का काम करती है। और इसके जो अनुसूची 12वीं है उसमें विद्युत से संबंधित विषय इसमें जो डाले गए हैं, तो जो उसके भुगतान का, बिजली बिल के भुगतान का मामला है, निश्चित रूप से यह एक राज्य से दूसरे राज्य का है। मैं चाहूँगा कि इस प्रकार की समस्या बीच बीच में भी आती रहती है। कई तो इसके निर्णयों को लागू किया गया और कई निर्णय ऐसे हैं जिस पर दोनों की सहमति नहीं बन पाती है। तो इस बिल के संबंध में अगर सहमति नहीं बनती है, भुगतान नहीं हो रहा है, तो मैं एक बार जरूर गृह मंत्रालय की ओर से वहाँ के इस स्थिति से अवगत होकर आगे अगर कुछ स्थिति उसकी बनती है तो उसमें चूंकि हम कोऑर्डिनेशन करते हैं, हम कुछ निर्णय नहीं ले सकते, तो उस संबंध में अगर कुछ सुझाव होगा तो हम उसको भेजेंगे। सेकंड सप्लीमेंट्री To you, sir, the Andhra Pradesh Srisailam Dam we have, sir. The Telangana government, they have power project downstream of the Srisailam project. They are not disciplined, sir. They are using the downstream, they are using the water for power generation, irrigated water, for irrigation purpose water. They are illegally, they are drawing and they are making the power, sir. This is not acceptable, and Home Ministry has to take immediate steps, and they should please put your collect that much quota of future. They should stop that water, sir. Thank you. देखिए, मैं पहले बताऊं कि हम कोऑर्डिनेशन का काम करते हैं और यह जल शक्ति मंत्रालय इस विषय को विशेष रूप से देखती है। लेकिन दोनों राज्यों की समस्या जब इस प्रकार से आती है और सिंचाई परियोजनाओं के माध्यम से अगर कोई बिजली उत्पादन की बात आती है, तो उसमें निश्चित रूप से इस परियोजना के अंतर्गत जो बातें आती हैं, इसके लिए भी जब हमारे गृह सचिव के स्तर से अभी तक 26 मीटिंग हो गई है, और अगर इस प्रकार की कोई बातें हैं जो माननीय सदस्य ने रखा है, तो आगे की किसी भी इस प्रकार की मीटिंग में इस बात को भी दोनों राज्यों के सामने रखेंगे। धन्यवाद। श्री GVL नरसिम्हा राव, प्लीज। Yeah. I'd like to ask the Honorable Minister about the capital of the state of Andhra Pradesh. There is a lot of confusion that was created by the state government when they sought to create 3 capitals. Then subsequently that legislation was withdrawn. But the central government has sent some communications addressing to Hyderabad. So these have all been circulating in the media and social media. While we all know Amaravati continues to be the capital, we would like to have the minister to clear this confusion for once and for all as to what is the capital of Andhra Pradesh as of today and who has the authority to decide on the capital issue. Thank you. महोदय, राजधानी के संबंध में निर्णय लेने का अधिकार राज्य को ही है। 23/4/2015 के अनुसार आंध्र सरकार ने अमरावती को अपनी राजधानी घोषित की थी, लेकिन जुलाई 2020 में आंध्र प्रदेश ने एक अधिनियम के द्वारा आंध्र प्रदेश की 3 राजधानियां अधिसूचित की: अमरावती विधायी राजधानी, विशाखापट्टनम कार्यकारी राजधानी और कुर्नूल न्यायिक राजधानी। लेकिन उसके बाद सरकार ने इस चीज़ को, एक जो समाचार पत्रों के माध्यम से भी हम लोगों को जो जानकारी प्राप्त हुई, कि इसको वापस ली है और कही है कि समीक्षा के तत्पश्चात हम इसका निर्णय लेंगे इस तीनों राजधानियों के संबंध में या एक राजधानी के संबंध में। लेकिन अभी अमरावती ही आंध्र प्रदेश की राजधानी राज्य सरकार ने अधिसूचित की। धन्यवाद। माननीय V. विजय साई रेड्डी। The Honorable Minister, sir, the legal division of the assets valued 1,42,601 crore belonging to the institutions listed in Schedule 9 and Schedule 10 of AP Reorganization Act of the and also of the institutions not mentioned in the Act also has not happened so far, and it is the responsibility of the central government to ensure that Act is implemented. This has hampered their functioning and has an adverse impact on the Andhra Pradesh.
Is the ministry taking any steps to expedite the division of such assets? And my colleague, Honorable Manya Ramesh ji, was the author of this AP Reorganization Act. Thank you. At that point of time. Thank you. Thank you. महोदय, 9वीं अनुसूची में के अंतर्गत संस्थान है और इसके निपटारा के लिए एक शिलाभिरेख कमेटी भी बनाई गई थी। 90 संस्थानों के संबंध में शिलाभिरेख कमेटी ने अपनी संस्तुति दी है जो प्राप्त हुआ। तेलंगाना ने 90 में से 68 संस्थानों की सिफारिशों पर कोई आपत्ति नहीं की, लेकिन आंध्र प्रदेश इन 68 में से 33 संस्थानों पर सहमत है। आंध्र प्रदेश समग्र हल के पक्ष में है, जबकि तेलंगाना केस बाई केस सिफारिश को स्वीकार करने के पक्ष में है। यहाँ कुछ विवाद आते हैं। 10वीं अनुसूची में प्रशिक्षण केंद्र भी हैं, तो इसके तहत 112 प्रशिक्षण संस्थान केंद्र वर्णित है। धारा 75 के अनुसार इसके विभाजन का कोई प्रावधान नहीं है और आंध्र प्रदेश इन्हें जनसंख्या के अनुपात में विभाजित करना चाहता है तथा तेलंगाना स्थान के आधार पर। अटॉर्नी जनरल के अनुसार विभाजन का कोई प्रावधान नहीं है, लेकिन जो भी चाहे 10वीं अनुसूची हो, 9वीं अनुसूची हो, चाहे इसके अलावे भी जो भी संस्थान या इकाइयाँ हो, उसका समाधान के लिए मंत्रालय, गृह मंत्रालय बार बार यहाँ से निर्देश देते हैं कि आपसी सहमति बनाई जाए। आपसी सहमति के आधार पर ही इस पर कुछ निर्णय हो सकता है और हम तो सिर्फ समन्वय का काम करते हैं, हम कोई आदेश जारी नहीं कर सकते हैं। हम कुछ सुझाव आते हैं या कुछ दोनों राज्यों की तरफ से कुछ बातें आती है तो उसको गृह मंत्रालय कोऑर्डिनेट करके दोनों स्टेट के सामने रखती है। जहाँ तक मैं इसलिए केंद्र सरकार की जो चिंता है, पुनर्गठन के बाद आंध्र राज्य को 2014 के उपरांत भारत सरकार द्वारा कुल 65,730 करोड़ की राशि जारी की गई और पुनर्गठन के बाद तेलंगाना राज्य को 2,385 करोड़ की राशि जारी की गई, जो विभिन्न संस्थाओं और राजधानी शहर की सहायता, सिंचाई परियोजनाओं से लेकर कई तरह के राजस्व घाटों के अनुदान के मामलों में भी और जो पिछड़े राज्य हैं उसको भी प्रत्येक वर्ष हम उसके विकास के लिए देते हैं। इस प्रकार से प्रयास होता है, लेकिन हम समन्वय का ही काम करते हैं। धन्यवाद। माननीय श्री सीएम रमेश जी, माननीय श्री सीएम रमेश जी, देयर आर अदर वेज फॉर दैट, प्लीज। माननीय सीएम रमेश जी। State has been bifurcated last 8 years back. It is there in the act, so many issues. These issues now, Telangana state and Andhra, some common properties, public sector undertakings and all. And some money also there in the deposit in the banks. Recently we have seen in the media, both the chief secretaries, Home Minister has called and had discussion, Home Secretary. And that also, how many issues are there, how many issues has been settled? I'm asking the Home Minister has to take initiative. Both the Chief Minister have very good relations. They were discussing their issues, but why Telangana issue, Andhra issues, they have to sit and settle. And every time they are telling we have very good relations. Please. Now I'm asking the government of India, if instead of calling secretaries, both Chief Minister also has to call and settle these issues. Please put your question. Yes, sir. Thank you. सभापति महोदय, काउंसिल की मीटिंग में माननीय गृह मंत्री जी ने भी दोनों राज्यों से यह आग्रह किया है कि दोनों राज्य जो भी विवाद के मुद्दे हैं उसमें आपसी सहमति बनाकर दोनों इस मामले का निपटारा कर ले। कहे कि कुछ चीज़ों पर निर्णय हुआ, कुछ चीज़ों पर निर्णय नहीं है और निर्णय दोनों राज्य की सहमति से ही होनी है। तो इनका अच्छा सुझाव है कि दोनों राज्य बैठकर सहमति बना लें और हम लोग भी यही चाहते हैं और बार बार इसका एमएचए के द्वारा प्रयास भी होता है। धन्यवाद। क्वेश्चन नंबर 6, ऑनरेबल श्री विनय विश्वम जी। माननीय मंत्री, टेबल ऑफ द हाउस। फर्स्ट सप्लीमेंट्री, माननीय विनय विश्वम जी। Sir, I raise a very serious issue which affects the women of this great country. The sexual violence within marriages. Sir, I am very sure that the Minister herself is aware of these facts. In Section 3 of the
Domestic Violence Act, it is defined what's a domestic violence. It includes harms or injures or endangers the health, safety, life, limb or well-being, whether mental or physical, of the aggrieved person or tends to do so, and includes causing physical abuse, sexual abuse, and such abuses. Thank you. Sir, the abuses are taking place even inside the marriages. You have to be brief in No, your sir, question, facts. Vinay. No, sir. Please. You allowed everybody to take their own time. Please, this is a very serious issue. Please, sir. Sir, when we come to section 375 of the IPC, the strength and the vitality of this definition is eroded. It says that a Mr. man... Vinay Viswam, you have to be brief in your question, yes, I'm please. right. No, in section 375 of the IPC, when rape is defined, the sexual abuse inside the marriage is exempted. It says that a man has a right to... Please be brief. Right to rape his wife. Please be brief. Sir, I'm very sure of that. Sir, one thing is sure, intercourse is really allowed in the marriage, but consent is very important. When a man, simply because he is You are a very senior member, seasoned member, you know you have to be brief in your question. I am asking the minister that whether the government has taken note of the contradiction between the definitions of Section 3 of the Domestic Violence Act and Section 375 of the IPC. Thank you. So at the onset, let me say to condemn every marriage in this country as a violent marriage and to condemn every man in this country as a rapist is not advisable in this august house. I'm sure that the erudite and senior member knows that Rule 47 of the procedures of the Rajya Sabha disallow for an elaboration on a subject which is currently sub judice. But let me say here reiterate the government's endeavor to protect women in this country in collaboration with state governments. Currently, over 30 helplines are functional in our country, which have assisted over 66 lakh women. Currently, there are 703 one-stop centers which are functional in this country, which have assisted over 5 lakh women. I speak, sir, not only as a member of this parliament, but also as somebody who has converged efforts with state governments, that protection of women and children in our country are a priority for all. But yet again, let me reiterate, to condemn every marriage in this country as violent is not advisable. Second supplementary. Thank you. Sir, I am very sorry to hear to the minister's Please. No, Put sir. your second supplementary. No, sir. I never meant that all the men are rapists. I never meant it. A woman, a minister, doing this is an insult on the man here. I am a man which never accept that way. And Please this put your parliament is second not a place. question. Sir, this is not a place to call every man as a rapist, which I never meant. But a man who raped his wife... I have to take other is a questions rapist, also, Vinayji. no doubt. I have to take other questions also. No, my question is Please that... be brief. No, in the answer, the Honorable Minister, who is a very vibrant minister, she told that they are now waiting the governments of the states to do it. My answer is that maintained by the respective state governments the data regarding the violences. Can the minister take initiative to gather those data and have a comprehensive idea at the national level and give it to the parliament at the earliest opportunity? Thank you. Law and order as a state issue is constitutionally settled. The fact that the honourable member suggests to me that I engage with state governments and seek records from them is a suggestion which I hear today. But can I make a recommendation on behalf of state governments today in this House? I cannot, sir. I am a representative of the Government of India. Thank you. A. Muhammad Abdullah. We are talking about the marital rape and domestic violence. A girl says no means no, whether she is a wife or whoever it may be. No means no. But many women are not aware that the marital violence is also a crime. So they keep quiet, they accept because they are unaware.
to create a... Will the government conduct any special awareness program in the school and college level? Thank you, sir. Thank you. So under programs of Beti Bachao, Beti Padhao, we have ensured that there is capital support given to every district officer, every state government, to ensure that women, and particularly young girls, are made aware of their constitutional rights and responsibilities. I am sure that the honourable member's suggestion is well heard not only in this House, but also by state governments. I would also like to bring to the honourable member's attention, sir, that through my endeavours, I have appealed to every member of parliament that in the Disha meeting that you undertake under your leadership in your district, you can bring up issues with regards to provision of more and more advocacy of women's rights under your leadership. Thank you. माननीय सुशील कुमार मोदी जी. माइक. ये जानना चाहता हूं कि यह बात सही है कि अगर मैरिटल रेप को क्रिमिनलाइज कर दिया गया तो जो विवाह की संस्था वो समाप्त हो जाएगी, और कब पत्नी ने कंसेंट दिया और कब विड्रॉ किया ये प्रूव करना मुश्किल होगा. तो मैं जानना चाहता हूं कि कोर्ट में सरकार का क्या पक्ष है, वो मैरिटल रेप को क्रिमिनलाइज करने के पक्ष में है या उसको इम्यूनिटी प्रदान करने के पक्ष में. मेरा सुझाव है कि इसको इम्यूनिटी प्रदान किया जाना चाहिए, नहीं तो ये जो विवाह की संस्था ये खत्म हो जाएगी. धन्यवाद. The honourable member has constitutionally served his home state very, very effectively, and hence I would be appealing to him to repeat Rule 47. I cannot elaborate on a sub judice matter. However, his opinion, I would like to highlight to him for research purposes, finds a reflection in the 172nd report of the Law Commission and also the Department of Standing Committee related to Home Affairs in the year 2013. श्रीमती रजनी पटेल. श्रीमती रजनी पटेल, लोकसभा. श्रीमती रजनी पटेल. I am Rajni Patil, sir. I am Rajni Patil. हाँ प्लीज श्रीमती रजनी पाटिल, स्टैंड करेक्टेड प्लीज. सवाल पूछे. सर, मैरिटल रेप जबकि सब जुडिस है, हम इसके ऊपर बिल्कुल बात नहीं करना चाहेंगे, लेकिन बिल्कुल इम्पोर्टेंट विषय के ऊपर ये सवाल पूछा है और ये हमारे पुरुष सहकारी ने पूछा है, इसलिए मैं उनका अभिनंदन करना चाहती हूँ. मंत्री महोदया ने जवाब दिया है कि 30 हेल्पलाइन पूरे देश में इसके लिए चल रही है. मैं उनसे निवेदन करना चाहूँगी कि क्या 30 हेल्पलाइन उसके लिए ठीक रहेगी, पूरी है, क्योंकि देश की आबादी को देखते हुए 30 हेल्पलाइन बहुत ही कम है. दूसरी बात है कि OSC जो उन्होंने बोली है कि जो अप्रूव हुई है वो 704 जो अप्रूव हुई है वो भी मेरे ख्याल से बहुत कम है पूरे स्टेट और यूनियन टेरिटरीज में. और 66 लाख का उन्होंने जो लिखित जवाब दिया है कि 66 लाख कॉल आए हुए हैं. सर, मैं आपको सिर्फ एक आधे सेकंड में बोलूँगी कि हमारे देश में पहले एक एकत्रित हमारी फैमिली रहती थी और परिवार में हमारे कोई ना कोई काउंसलिंग. रजनी जी सवाल प्लीज, 2 सवाल पूछ चुकी. बी ब्रीफ. काउंसलिंग सेंटर्स आर मोर इम्पोर्टेंट बिकॉज काउंसलिंग इस चीज में बहुत इम्पोर्टेंट रहता है. कानून तो अपने जगह पे कानून काम करेगा, लेकिन मुझे लगता है कि परिवार में अभी हमारा न्यूक्लियर फैमिली हुआ है तो न्यूक्लियर फैमिली में काउंसलिंग करने वाला कोई होता नहीं. तो हम क्या मंत्री महोदया कोई ऐसे कोई जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार है या ऐसी कोई प्रावधान है कि जो काउंसलिंग सेंटर्स ज्यादा से ज्यादा पहुंच जाएंगे? धन्यवाद. मैं आदरणीय महोदया को अवगत कराना चाहती हूँ कि 34 हेल्पलाइंस देश भर में प्रदेश सरकारों और यूनियन टेरिटरीज के माध्यम से चलाई जा रही हैं, जो इस जवाब में उल्लेखित है. साथ ही निश्चित रूप से 700 से ज़्यादा कार्यरत है वन स्टॉप सेंटर्स, लेकिन बजट में प्रावधान किया गया है कि जिन जिन जिलों में महिला के खिलाफ क्राइम बढ़ा है
वहाँ पर एक एडिशनल वन स्टॉप सेंटर हम लोग प्रदेश सरकार के साथ समन्वय में स्थापित करके प्रदेश की बहनों को इस प्रकार का समर्थन देंगे। रजनी जी ने एक विशेष उल्लेख किया काउंसलिंग के संदर्भ में। मैं उन्हें अवगत कराना चाहती हूँ कि लगभग 1.5 साल पहले निमहांस के साथ समन्वय में संवाद नामक एक हमने कार्यक्रम स्थापित किया, जिसके अंतर्गत बच्चों के मेंटल हेल्थ चैलेंजेस और उनके जो ड्यूटी होल्डर्स हैं उनको ये सुविधा और ये सहायता प्रदान की गई। अब तक 1 लाख से ज़्यादा लोगों को ये सुविधा प्रदान की गई है और निश्चित रूप से हम संकल्पित हैं कि ये सुविधा देश भर में निमहांस के सौजन्य से महिलाओं को भी हम प्रदान करें। कल ही इसी संदर्भ में टेलीमेडिसिन और टेलीकाउंसलिंग की दृष्टि से बजट में भी वित्त मंत्री जी ने घोषणा की है। धन्यवाद। क्वेश्चन नंबर 7, माननीय राजेंद्र गहलोत जी। माननीय राजेंद्र गहलोत जी। माननीय राजेंद्र गहलोत जी, लोकसभा। माननीय राजेंद्र गहलोत जी, आपका सवाल है क्वेश्चन नंबर 7। आप लोकसभा में हैं तो बैठकर हाथ खड़ा करें। माननीय उपाध्यक्ष महोदय। धन्यवाद, धन्यवाद। आप बैठें। माननीय मंत्री जी, प्रति सभा पटल पर रख दिया गया। माननीय राजेंद्र जी बैठकर ही पहला सवाल पूछें। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं जानकारी चाहूंगा कि अभी तक कितने आवंटन हुए हैं और जो अधूरा काम है कब तक पूरा हो जाएगा। सभापति जी, ये जो आवंटन पूछा गया है और इसलिए ये जो टोटल जो संख्या है लगभग 19 लाख के आसपास है की संख्या है और इससे ये स्पष्ट होता है कि इसकी जो प्रक्रिया है पूरे राजस्थान का पूछा है कि 19,62,367 ये राज्य द्वारा तय किया गया लक्ष्य है और इस लक्ष्य के आधार पर स्वीकृत जो मकान हैं उनकी संख्या होती है 17,547 और जो बनाए गए मकान हैं उनकी टोटल जो संख्या है 13,73,831। ऐसे कुल मिलाकर के 69.90% अभी तक के लक्ष्य वहां पर बनाए गए। धन्यवाद। माननीय राजेंद्र जी, दूसरा सवाल, दूसरा सप्लीमेंट्री। महोदय, राज्य सरकार द्वारा जो आवंटन करना था अभी तक उस लक्ष्य तक पहुंचे नहीं है और अधूरे काम पड़े हैं। उपभोक्ता जो जिनको आवंटन होने वाला है वो बड़े परेशान हो रहे हैं। सभापति जी, ऐसे समय समय में माननीय सदस्यों को भी दिशा की बैठक में इसकी समीक्षा करना चाहिए, ऐसी व्यवस्था है। जहाँ तक आवंटन का सवाल है, आवंटन जैसे माननीय सदस्य ने पूछा है कि जो वर्षवार जो हम आवंटन जारी किया है तो स्पष्ट तौर से 18-19 में ये हमने 1396.47 और जहाँ तक जारी की गई जो निधियाँ हैं वो 23,340.13 ये निधि ऐसे 18-19 का। जहाँ तक है 19 और 20 का सवाल है, इसी प्रकार से 3,245.87 और जो जारी की गई जो निधि है वह है 2,333.34। ये हमारा 19-20 का है और 20 और 21 का है 3,1109.80 और 11,008.59 ये जारी की गई निधियां हैं और ये स्पष्ट तौर से इस पे दिया गया है। श्री राम कुमार वर्मा जी। किस क्वेश्चन हाँ, धन्यवाद उपसभापति जी। माननीय उपसभापति जी, प्रधानमंत्री आवास योजना से ये इसमें दोहराए नहीं है कि करोड़ों लोगों को, गरीबों को लाभ मिला है। मैं इस संबंध में राजस्थान प्रदेश के बारे में जानना चाहूँगा, क्योंकि जब ये स्कीम लागू हुई गरीबों को करोड़ों में लाभ भी मिला, लेकिन उसमें सेंसस 2011 को आधार ज़्यादातर माना गया, लेकिन केंद्र सरकार के द्वारा सर्वे भी किया गया। जो लोग उस समय उस लिस्ट में नहीं आए थे और जो एक्चुअल में गरीब थे, जिनको आवास देना था, उनके बारे में मंत्री महोदय क्या कहना चाहेंगे?
सभापति जी, ये 2011 का जो सेंसस है और जो उस पर सर्वे हुए, उस सर्वे के आधार पर जो लिस्ट जारी हुई, प्रकाशित हुई, और उस 2011 के बाद हम आवासों का आवंटन करते हैं। राज्य सरकारों के द्वारा बीच में जो सर्वे किया गया, वो आवास प्लस की सूची, वो आने वाले समय में आवास प्लस की व्यवस्था भी है, और इसलिए हमारा ऐसा मानना है कि इसमें कोई भी व्यक्ति जो सूची में है वो कोई प्रभावित होने वाला नहीं है। हम सभी लोगों को उसका लाभ पहुंचाने का हमारा निर्णय है सरकार का। धन्यवाद। श्री नीरज डांगी जी। जानना चाहूँगा, प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत जो सांसदों द्वारा चयनित सांसद आदर्श ग्रामों में राजस्थान में कितने लाभार्थियों को इस योजना का अब तक लाभ मिल चुका है, और क्या पृथक से कोई सर्वे भी इस तरह का कुछ किया है इस योजना के तहत? धन्यवाद। माननीय सभापति महोदय, व्यवस्था जो की गई 2016 में, वो सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस से लिया गया। 2.95 करोड़ उसका लक्ष्य था, और उस लक्ष्य को राज्यों को दिया गया। फिर राज्यों ने कहा कि कुछ इसमें पात्र अपात्र आ गए हैं, तो वो फिर करके तब तक यहाँ कैबिनेट से 2.95 करोड़ आदर्श ग्राम के लिए कोई व्यवस्थित लक्ष्य नहीं है। राज्य सरकार उस सूची में अगर है तो वो जाएगा। धन्यवाद। क्वेश्चन नंबर 8, ऑनरेबल श्री MB श्रेयांश कुमार। ऑनरेबल MB श्रेयांश कुमार, नॉट प्रेजेंट, नो सप्लीमेंट्री। ऑनरेबल मिनिस्टर। जवाब पटल पर रखा है सर। डॉक्टर फौजिया खान, डॉक्टर फौजिया खान फ्रॉम लोक सभा, प्लीज पुट योर क्वेश्चन। Sir, I would like to ask the Minister, Honorable Minister, that national highways have always been constructed keeping excellence and quality in mind. But in many places, it's been noticed that contractors and the government employees, hand in hand, have given a lot of scope to corruption. The MoTH specifications are not adhered to at all. One instance about which I had given a complaint also to Honorable Minister is about road number 752K from Gangakhed to Parbhani, which has developed traverse and longitudinal cracks all through the road, and every official seems to be in connivance. Nothing has been done. Again and again I am writing to the government. I have also written to you, Honorable Minister. Thank you. But how can we allow this kind of, irresponsible use of public money? Thank you. You have put your question, Dr. Minister Fauji. going to be doing about it, sir? Thank you. माननीय मंत्री। उपाध्यक्ष महोदय, the question is only limited to Char Dham Yojana. Yes. But the question is from Maharashtra, and that NH state PWD is responsible executive agency for that. Already the honorable member has given me the complaint about the quality of this project. I will look into it again, and I will verify the things, and I will report that. Thank you. No other supplementary. Question number 9, Shri GVL Narasimha Rao. 9. माननीय मंत्री जी। Sir, statement is laid on the table of the House. Your first supplementary. सर, माननीय प्रधानमंत्री जी को और माननीय मंत्री जी को मैं पहले धन्यवाद देना चाहता हूं, क्योंकि उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा संख्या में स्किल इंडिया मिशन के तहत युवाओं को शिक्षित किया गया। आउट ऑफ 91 lakhs इन द एंटायर कंट्री, 12.63 लाख केवल उत्तर प्रदेश से हैं। और मेरा माननीय मंत्री जी से ये सवाल है कि जो लोग शिक्षित किए गए, वो कितने लोगों को यहाँ रोजगार का अवसर मिला है उत्तर प्रदेश में, और अवसर और बढ़ाने के लिए सरकार क्या कदम उठा रही है? धन्यवाद।
Question hour is over, so let us move. Thank you. Now on motion of thanks on the President's